Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 77. Hope you all are very fine. Now this is very interesting topic. We have been learning sexual reproduction in flowering plants. In the last video, if you have watched that, you will recognize that we have started the study of pollination, and in that we have studied merits. After studying that types of pollination, we have studied that article merits and demerits of self-pollination or autogamy. Now in the similar fashion, we have to learn merits and demerits of cross-pollination or allogamy. What is that cross-pollination? You know better that whenever the pollen grains from the anther of one flower present on one plant get transferred onto the stigma of other flower present on other plant, then that is called as xenogamy, that is called as allogamy, that is called as cross pollination. समझ में आ रहा है? अगर एक ही टाइप के है, एक ही स्पीसीज के है, तो वो xenogamy कहा जाता है. अगर वो दो प्लांट अलग अलग स्पीसीज के लेकिन टाइप एक ही है. अब बहुत बार स्टूडेंट्स को ये ध्यान में नहीं आता, टाइप एक ही है, स्पीसीज अलग है, इसका मतलब सिंपल है. If you go to the plants there like mango, you will find that several varieties of the mango are there. तो ये अलग अलग स्पीसीज हो गए, टाइप एक ही है, मैंगो, isn't it? If you take the rice, so many varieties of the rice are there. So type is one, but the species are different. तो अगर अलग अलग स्पीसीज में ये हो जाता है ट्रांसफर पोलन ग्रेन का, then that will be known as hybridization, and the product form is called as hybrid. अलग अलग प्रजाति अगर है तो, हाँ अलग टाइप ही है तो इट इज वेरी रेयरली पॉसिबल दैट दैट पॉलिनेशन विल बी सक्सेसफुल. पॉलिनेशन होएगा नहीं फिर वहां पे. यानी एक मैंगो प्लांट है, उसका पोलन ग्रेन अगर समझो ऑरेंज प्लांट के फ्लावर पे जाके हो गया, देन दैट विल नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, दैट विल बी फेल्ड. ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन दैट मीन्स transfer of pollen grains from the anther onto the stigma of different flower present on different plant is known as cross pollination or allogamy. तो उसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, demerits भी है. They are also called the advantages. If that we are counting about the merits, that is called the advantages. Okay, and if you are counting that demerits, then that will be known as disadvantages. Disadvantages. तो क्या है वो देखने हैं, merits and demerits of cross pollination. तो merits पहले देखेंगे हम. First of all, we shall learn the merits. कभी भी फायदे पहले देखना चाहिए, isn't it? क्या फायदा है इसमें. तो अब ये वीडियो देखने में क्या फायदा है? तो फायदा एक ही है, दैट योर आर्टिकल विल गेट कवर्ड वेरी इजीली बाय सिटिंग एट होम. कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको. बस यूट्यूब में अगर दूसरा टाइम पास आप कर रहे हैं, वो शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स हमारे एमसीक्यू के जरूर देखो, बट द अदर रील्स एंड शॉर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट इफ यू आर वॉचिंग, ये तो ऐसा माया जाल है, एक बार अटक गए उसमें तो घंटों चले जाते हैं, वो ठहरते नहीं, एक के बाद आते ही रहते हैं. एंड दैट योर वेस्टेज ऑफ टाइम विल बी देयर, isn't it? बट डू लर्न, डू यूज दैट. मोबाइल जो है वो ऐसा अगर ले लिए तो उसका फायदा भी हम करके ले सकते हैं, isn't it? So the things which are useful that you should watch. सो दिस लेक्चर मेरिट क्या है इसका, काटे सर के साथ ये बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, योर कंसेप्ट्स विल गेट क्लियर एंड वेरी इजीली, घर में बैठे बैठे ही आप. एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट you will learn the things and you will be able to understand that. I'm sure so many students are writing to me, they're saying that sir, the lectures are really very amazing and I'm getting my concepts clear with the help of that. I'm preparing myself with the help of that, even the shorts also.
दैट MCQs. ओके, सो ये देखो अभी मेरिट, तो ये मेरिट है हमारे चैनल का, इजंट इट? तो मेरिट्स क्रॉस पॉलिनेशन के देखने हैं. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज that new genetic combinations are possible because it happens in two different plants. Okay, so very important thing is that new genetic combinations यहाँ पे होते हैं और new genotypes are possible, ये यहाँ पे मिल सकते हैं. तो इसका क्या फायदा है? So what will happen because of that new genetic combination? यानी नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. वेरिएशंस इन द कैरेक्टर्स विल बी पॉसिबल. वो क्या है, नेचर को भी और हमको भी वैसा ही होता है. वेरिएशंस आर पॉसिबल, इजंट इट? हमको भी ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. अगर वही आता है हर रोज तो हम बोर हो जाते हैं, इजंट इट? खाने में भी देखो ना, वही अगर समझो एक ही सब्जी हर रोज माता जी बना रही है तो बाद में वो उसका टेस्ट वगैरह हमको बोर हो जाएगा. सो वी नीड द चेंज देयर. तो ये चेंज जरूरी है, वेरिएशन जरूरी है, प्लांट्स को भी, नेचर को भी. सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, वेरिएशंस आर द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. मैंने पहले भी बताया था, किसी सिटी का अगर आप देखेंगे और बहुत डेवलपमेंट हो गई सिटी में, ये कब कहेंगे हम? when you will watch that there are so many new constructions are there. नए नए सोसाइटीज बन गए, फ्लाईओवर ब्रिजेस बन गए हैं, isn't it? मॉल्स आ गए हैं, एंड देट ऑल दैट रोड्स आर वेरी नाइसली कंस्ट्रक्टेड. ऐसा हरदम अगर कुछ बदलाव आता है तो हम कहते हैं डेफिनेटली ये क्या हुआ है, प्रगतिशील हो गया है शहर हमारा, एंड नाउ वी आर डेवलप. ओके, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. सो सच वेरिएशंस आर द बेस ऑफ इवोल्यूशन. सो सच प्लांट्स कैन टेक पार्ट इन evolution. They can take part in organic evolution. या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, whereas self pollinated plants will not be able to do that. Self pollination will not cause new genetic combination. New genotypes are not possible. तो वही कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर्स will get repeated there in every generation. So new characters are not possible, means evolution में वो पार्ट नहीं कर सकते, वो उनका डीमेरिट हो गया, isn't it? यहाँ पे इसका मेरिट हो गया है. Then another very important thing is that new characters or desirable characters can be introduced. New characters can be introduced. अगर हमें चाहिए, मेंडल ने तो किया था ना वैसा, नए नए कैरेक्टर्स बना के दिए थे. मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस लर्न करो ना. तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था पी प्लांट में, isn't it? वो डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आपको रिमेंबर होता है तो देखो, येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट क्रॉस विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड. तो देखो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, एक्चुअली येलो एंड राउंड जो है, राउंड इज डिजायरेबल कैरेक्टर, और यहां पे ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो यहां पे ग्रीन डिजायरेबल कैरेक्टर है, यानी ग्रीन पीस हमको अच्छे लगते हैं. पीस देखो ना, मटर जो है वो अगर ग्रीन है तो अच्छा लगता है, येलो है तो हमें यार बोर है ऐसा लगता है, नॉट डिजायरेबल. ग्रीन इज ओके. एप्पल, लेकिन ग्रीन में जो था वो क्या था, वो रिंकल्ड था. रिंकल्ड यानी दैट इज नॉट हैविंग द दैट रफनेस देयर, इट वाज हैविंग लाइक दिस. और राउंड यानी वो पूरा राउंड था, परफेक्ट. सो एक्चुअली वी वेर इन द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, ग्रीन एंड राउंड वैरायटी. तो मेंडल ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन करके दिखाया, एंड एक्चुअली दे गॉट वन वैरायटी, ग्रीन राउंड, isn't it? ये ग्रीन राउंड स्मॉल y
कैपिटल आर, अगर आपको याद आता है तो, isn't it? ग्रीन राउंड वैरायटी वाज देयर। यहाँ पे जीनोटाइप का क्या था? कैपिटल वाई, कैपिटल आर। यहाँ पे क्या था? स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये स्मॉल यानी दैट इज रेसेसिव कैरेक्टर, ये स्मॉल यानी रेसेसिव कैरेक्टर। दे कैन गेट एक्सप्रेस ओनली व्हेन दे आर अलोन। तो चलो, ये तो जेनेरिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दिस नाउ. So new varieties are possible. What I am saying, desirable characters can be introduced because of this cross pollination. Okay, and at the same time I will say that unwanted characters can be eliminated. इसके लिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया, अनवांटेड कैरेक्टर्स आर इलिमिनेटेड। देखो आप, ये इलिमिनेट हुए कि नहीं? देखो, अभी यहां पे हमको येलो कलर नहीं चाहिए था, हो गया इलिमिनेट। दैट वी आर नॉट रिक्वायरिंग रिंकल्ड नेचर लाइक दिस, गॉट eliminated here, and we got this. So only required characters can be added and undesirable characters can be removed. This is the advantage or merit of cross pollination. कितना बड़ा मेरिट है ये, isn't it? Very important, very important. Okay, then another is there, such plants they produce healthy progeny. क्रॉस पॉलिनेशन से हेल्दी जनरेशन आता है, healthy progeny will be there, isn't it? Then plants produce will have maximum flowering. क्रॉस पॉलिनेशन से जो होते हैं प्लांट्स तैयार, they will have maximum flowering and fruiting and seeds. Okay, so ये maximum बहरते हैं, that they produce maximum flowers, maximum fruits and maximum seeds, and that will be useful and beneficial. So अगर आप चेक करते हो demerits of self pollination, तो आपको ध्यान में आएगा whatever the demerits of self pollination are there, the same are the merits of this. Same are the merits of this क्रॉस पॉलिनेशन. जो वहां पे डीमेरिट्स है वो यहाँ पे मेरिट्स है. जैसा ऑफलाइन क्लास करना है कॉलेज में जाके या कोई कोचिंग क्लास में जाके, और मेरे पास ऑनलाइन में लर्न करना है, तो वहां पे जो भी डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे वो मेरिट है ऑनलाइन मेरे पास इस चैनल पे लर्न करने में. एक तो वी हैव टू वेस्ट आवर टाइम इन ट्रांजिट, यहाँ पे नो वेस्टेज इन द ट्रांजिट. इधर उधर जाने में जो हमें टाइम लगने वाला, अभी पुणे जैसे सिटी में तो कई घंटे जाते हैं ट्रैफिक में, तो वो टाइम सेव हो गया. यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में नहीं लगेगा वो टाइम, चालू कर दिया हो गया, चलो नेट कनेक्शन होना चाहिए, isn't it? Second thing, then there particularly whatever the things you are getting it by payment. You have to pay the fees there. यहाँ पे क्या है? No charges. Then third thing is there, once the lecture is over, again you cannot have that same lecture. वही पॉइंट्स आपको वहां पे नहीं मिलेंगे, फिर एक बार सर को बोलेंगे सर रिवाइंड करो और हमको फिर एक बार बताओ. Then that is not possible there in the live lecture, वहां पे फिजिकल लेक्चर में. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं, जस्ट गो देयर बैक, उस फिर स्टार्टिंग से चालू कर दो, you will get it, isn't it? So that whatever the disadvantages are there, the merits are here, isn't it? पर उल्टा भी है, वहां पे जो मेरिट्स है वो यहाँ पे डिसएडवांटेज. जैसे आप बताओ आप क्या क्या है, आप कह सकते हैं. कई बार स्टूडेंट्स को घर में बैठे बैठे बोर होता है, उनको लगता है चले यार गाड़ी पे जाएंगे फर्स्ट का बस निकाल चले गए, isn't it? एंजॉय करते करते चले गए. और यहाँ पे घर में ही बैठ के वो चालू करना है लैपटॉप या मोबाइल और देखना है, कहीं जाना नहीं होता है, isn't it? तो ये गलत है, ये यहाँ पे डिसएडवांटेज हो गया ऑनलाइन का. तो वहां पे जो मेरिट है, वहां पे हम फ्रेंड्स से मिल सकते हैं,
कई बार कई बच्चों को तो बॉयज दे वुड लाइक टू सी द गर्ल्स फेसेस, चार्मिंग फेसेस, वुड लाइक टू हैव सम चैट्स विद देयर गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल, इजंट इट? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घर में हम अकेले ही है भाई, इजंट इट? सो यू नॉट गेट दैट. सो मेरिट डिमेरिट ऑनलाइन. फिर वहां पे और क्या होता है पर्टिकुलरली, दैट वी मे वॉन्डर हियर एंड देयर आफ्टर द क्लास, और क्लास के नाम पे भी बहुत सारे बच्चे भटकते हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स सामने बैठे हैं और उनके सामने हम लेक्चर लर्न करने हैं, बीच बीच में आके देखते हैं वो लेक्चर ही देख रहा है काटे सर का या दूसरा कुछ देख रहा है, इजंट इट? सो ये वहां पे फिर स्कोल्डिंग हो जाता है अगर बीच में हम कुछ दूसरा देखते हैं तो, इजंट इट? तो कई बार तो बच्चे इनोसेंटली पकड़े जाते हैं. वो क्या होता है कि बीच में ऐड आता है ना, तो उसी टाइम पे अगर मदर मॉम वहां पे आ गए, अरे ये क्या देख रहा है, फिर वो बच्चे नहीं नहीं ऐड आ गया है, अरे स्किप करना उसको, लाइक दैट. सो दीज आर दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ सेम थिंग इज देयर, वॉट एवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ self pollination are there, they all are the merits or advantages here in the cross pollination. अब क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है ये लर्न करेंगे. डीमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द डीमेरिट्स, आप इजीली बता सकेंगे, वेरी इजी. फर्स्ट थिंग इज दैट कैन नॉट बी एंश्योर्ड. इसको हम एंश्योर्ड नहीं कर सकते, ये कभी भी फेल हो सकता है, पहली बात. क्योंकि क्या है, ये डिपेंडेंसी है इस पे. एक प्लांट के पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट पे जाना है, इट मीन्स दैट इट रिक्वायर्स सम हेल्प. सो इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑल टाइम्स, इट कैनॉट बी एंश्योर्ड, कैनॉट बी गारंटी, रिमेंबर. देन एक्सटर्नल एजेंट्स आर रिक्वायर्ड. External agents are required and they may not be efficient all times because pollen grains cannot go by their own, they are non-motile. So every time external agencies will be required, either the wind or the insects or the birds, like that. They cannot be available all times. वो क्या तुम्हारे नौकर थोड़ी है? And that's why that courier service, वो तो social service है उनकी, उनके दिल पर है. एंड दैट्स व्हाई एक्सटर्नल एजेंसीज मे नॉट बी efficient all times. Then another very important thing is that this process is very expensive. ये expensive है. Why expensive? Because plants need to spend lot of energy in making what? That means for what? किस लिए? That एक तो बात, flower should be large, flower should be particularly large, attractive, brightly colored. Flowers attractive बनाने चाहिए, brightly colored बनाने चाहिए, so that the insects will visit them. Then second thing is that flowers should be scented. Scented flower की जरूरत है, isn't it? Then they should have with nectar or honey. Then they should have abundant pollen grains with large number of pollen grains. So what will happen there? ये इतना सब बनाने में तो एनर्जी चली जाएगी, बहुत सारी एनर्जी लगेगी to make the flowers attractive and all, and that's why it is expensive. Self pollination में ऐसा नहीं था, no agencies were there required, isn't it? And that's why that is less expensive or very very easily possible. ये यहाँ पर वैसा नहीं है, ये demerit है, ये expensive बात हो गई, isn't it? Then another very important thing is that wastage of large number of pollen grains. Wastage of pollen grains is much, maximum wastage of pollen grains हो जाता है. जितने भी pollen से बनाते हैं, each pollen grain cannot reach the destination. After that, spend producing thousands of pollen grains,
hardly 1, 2, 3 or few number of the pollen grains would be successful in depositing on the that stigma. Other will fall here and there. So they are wastage. तो ये particularly expectation रखकर ही maximum pollen grains are required to be produced. So ये demerit हो गया. And then desired characters cannot be continued. Plants cannot be kept pure. Cannot be kept pure genetically. प्लांट को जेनेटिकली प्योर नहीं रख सकते. एंड कैरेक्टर्स मे गेट चेंज. कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं. अब आप कहेंगे जेनेटिकली प्योर क्यों रखना? अब रखना चाहिए ना. अल्फांसो मैंगो जो है हापुस, वंडरफुल वैरायटी. इफ इट विल अंडरगो क्रॉस ब्रीडिंग, the taste will disappear, isn't it? So keep that plant very properly with the same texture there, same taste there. Self-pollination is must, and cross-pollination will spoil the process. तो कुछ advantages है, कुछ disadvantages है, but despite of that, even though self-pollination is very, very easy, 100% ensured, nature has not liked self-pollination, and cross-pollination is maximum in nature, and that's why organic evolution goes on. Okay, so I'm sure that you must have understood this part very properly. That will help you in NEET also. Which of the following is true for cross-pollination? Which of the following is incorrect for cross-pollination? Which is the advantage of cross-pollination? Which is the demerit of cross-pollination? Such MCQs can be framed on that. And I'm sure you'll be able to answer that very properly. So do like and share this video to your friend circle, and go on watching that MCQs also, that they will help you certainly in the NEET examination. Thanks a lot.